Hello, myself Dr. Ibhagna. I have started my YouTube channel during lockdown. From July 2020, I have started my YouTube channel and I have uploaded more than 160 videos which is related with economics for class 11th, 12th, CBSE, ICC and other competitive examination like assistant professor, those who want to become assistant professor in universities, UC NET, especially for UC NET. I have uploaded many videos which is related with UC NET and also those who are preparing for IAS and PCS examination. Today in this series, today I will tell you the question which I am telling you the question which is very important and which will come many times in the IAS or PCS examination, and it will be come in Indian Economic Service also. And the question name is Hicksian method. Hicksian method, I will tell you what is Hicksian method. We can say that Hicksian method, I'm telling you about Hicksian method. और इन हिक्स मेथड वी कैन से डेट हिक्सियन मेथड या हिक्स मेथड्स. हम इसको देर आर टू मेथड्स, फर्स्ट हिक मेथड्स एंड सेकंड इज हिक मेथड. तो जब हम हिक मेथड की बात करेंगे तो मैं आपको हिक्सियन मेथड समझाने जा रहा हूँ, हिक मेथड समझाने जा रहा हूँ. और इससे पहले समझाने से पहले सबसे पहले मैं समझा दूँ कि प्राइस इफेक्ट जो होता है, जब हम प्राइस इफेक्ट की बात करते हैं तो प्राइस इफेक्ट इजिकल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है. प्राइस इफेक्ट इजिकल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है. एक बार दोबारा समझ लीजिए, प्राइस इफेक्ट जो है दो भागों में डिवाइड है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. बिफोर स्टार्टिंग हिक्स इफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज income effect and then I will tell you what is substitution effect and then we start the Hicks method with the help of the diagram. Now I am telling you income effect. What is income effect? Income effect किसे कहते हैं? देखिए, income effect means when the fall in the price of the commodity, when fall in the price of the commodity, in the price of a commodity, when fall in the price of a commodity, then purchasing power of then the real income of the consumer increases. Then real income of the consumer increases. Real income of the consumer increases, and he can buy more quantity of a commodity, and he can buy more quantity of a commodity. बट ध्यान सुनेगा, when there is a fall in the price of a commodity, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है, then real income of the consumer increases. कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. और he can buy more quantity of a commodity. This is known as income effect. Known as what? Income effect. When there is a fall in the price of the commodity, then purchasing power of the income increases, consumer increases and he can buy more quantity of the commodity. अब आइए substitution effect. Now I am telling you what is substitution effect. Substitution effect. So students, when we talk about the substitution effect, it means substitution effect का means हो गया change in quantity demand. हम ये कहते हैं change in quantity demand due to change in price of the commodity. Due to change in the price of the commodity, that is known as substitution effect. ये हम ये कहते हैं when it occurs, when he can substitute, it occurs when he can substitute cheaper goods in place of expensive goods. Expensive goods, we can say that in place of he want to buy expensive goods, he can buy cheaper goods when the price of the commodity decreases. It occurs when he can substitute cheaper goods in place of expensive goods. That is known as substitution effect. And हम ये कहते हैं, now we are talking about Hicks effect. Hicks effect क्या होता है? What is Hicks effect? तो देखिए, Hicks effect से सबसे पहले समझाने से पहले मैं I will make a diagram, क्योंकि we can explain this Hicks effect with the help of the diagram. We can explain
this Higgs effect with the help of diagram. So first of all, what I will do, I will make this diagram. This is O, this is X, and this is what? Y. Okay, and we can say that in this diagram I am telling you about Higgs method. Higgs ने क्या बोला? तो let's suppose that this is AB. ये क्या है? AB एक हम ये कहते हैं AB ये इनिशियल प्राइस लाइन है. नंबर 1, AB इज द इनिशियल प्राइस लाइन. इनिशियल प्राइस लाइन है, ठीक है, ये प्राइस लाइन है. अब क्या हुआ जब ये इनिशियल प्राइस लाइन है, जब अब सेकंड पॉइंट, ये प्राइस ऑफ एक्स फॉल, ये प्राइस ऑफ एक्स फॉल, मैं नॉर्मल गुड्स के बारे में बता रहा हूँ. ये नॉर्मल गुड्स होगा. क्या होगा? कैसा गुड्स होगा? नॉर्मल गुड्स का केस आई एम टेलिंग यू. ये प्राइस ऑफ एक्स फॉल, अगर एक्स का प्राइस फॉल होगा देन AC बिकम्स द न्यू प्राइस लाइन. तो AC बिकम्स द न्यू प्राइस लाइन. AC बिकम्स द न्यू प्राइस लाइन. न्यू प्राइस लाइन. बड़े ध्यान सुनेगा क्या कहता है. AB इज द प्राइस लाइन व्हेन प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ एक्स फॉल, अगर एक्स के प्राइस फॉल होंगे, ये क्या नॉर्मल गुड्स है, अगर एक्स के प्राइस फॉल होंगे तो न्यू जो होगा, जो स्टूडेंट्स, जो नया जो प्राइस लाइन होगा या बजट लाइन होगा, वो क्या होगा? AC होगा. वो क्या होगा? AC होगा. ठीक है. तो हम ये कह दें, लेट्स सपोज दैट दिस इज द इंडिफरेंस कर्व. दिस इज इंडिफरेंस कर्व एंड वी कैन से दिस इंडिफरेंस कर्व व्हाट, हम कहते हैं IC1. IC1 तो इंडिफरेंस कर्व हो गया. तो देखिए ये यहाँ से आ रखा पॉइंट से गुजर रहा है. तो जब हम ये इस तरीके से इसने ज्वाइन कर दिया इंडिफरेंस कर्व, तो क्या हो गया? ये इंडिफरेंस कर्व हो गया. और हमने इसका नाम कर दिया, यहाँ पे लिख दिया K, लिख दिया K, और यहाँ पे लिख दिया हम इसको, यहाँ पे ये लिख देंगे, इसमें हम E1 लिख देंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. अब हुआ ये, क्योंकि जब प्राइस कम हो गया तो क्या होगा? कंज्यूमर क्या होगा? तो बजट लाइन क्या होगी? एक्सटेंड होगी. तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट ये बन गया आपका IC2 बन गया. IC2 बन गया. ये बन गया E2 बन गया. इसको नीचे मिला लीजिए आप लाइन को, और जब आप लाइन को मिलाएंगे तो ये मिलेगा आपको व्हाट? M मिलेगा. व्हाट? ये मान लीजिए M मिल गया. वी कैन से इट इज़ व्हाट? M हमने इसको मान लिया. ठीक है. ये इंडिफरेंस कर्व हमने मान लिया IC1 I2. तो आपने देखा कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. जब व्हेन द प्राइस विल रिड्यूस देन बजट लाइन रीच इन द टॉप मोस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो ये E से E2 हो गया. ठीक है. तो अब आपने देखना ये है कि अब आपने इसको ये देखने के बाद आप ये देखेगा जिस तरीके से बना. तो हमने क्या करा, ये तो बजट लाइन आगे की तरफ बढ़ गई. तो पुरानी बजट लाइन के हम इसको इसके पहले लिखो और बजट लाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं, और देखेगा कि ये बजट लाइन कैसे होती है. देखिए हमने क्या करा, एक बिल्कुल इसके पैरेलल एक बजट लाइन बनाई. तो ये यहाँ पे मिल गया, तो इसको बन गया E1, और ये बन गया क्या आपका KL बन गया. आप देख रहे हैं मैंने क्या करा, इस बजट लाइन के बिल्कुल पहले लिखो लाइन खींच दी. ये पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये बन गया. और ये दूसरा हमने क्या हुआ, जब ये बजट, क्योंकि जब प्राइस कम हो गया तो उसने और ज़्यादा बजट लाइन आगे की तरफ बढ़ गई. कंज्यूमर ने हायर इंडिफरेंस कर पसंद कर दिया. जब किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइस बजट लाइन आगे की तरफ बढ़ गई. आपने देखा ये इस तरफ आगे की तरफ हो गया, बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम AC हो गया. तो आपने देखा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको हमने यहाँ पे मिला दिया नीचे. तो अब आप देख रहे हैं कि जो E1 और E2 है, जो ये है आपका, ये हमने आपको यहाँ पे E1 मान लीजिए, इसे E1 E2, और इसको मान लीजिए E3 मान लीजिए. E1 इसे मान लीजिए, इसे E2 मान लीजिए, इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट 3 मान लीजिए. हमने एक बार दोबारा समझा दो, हमने एक बजट, हमने पहले लाइन खींची है. अगर हम इसकी इनकम दोबारा वापस ले लेंगे, हम ये देखेंगे कहाँ पे वो सेटिस्फाइड है. तो वी विल सी डैट विद दिस पैरेलल लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. दिस इज E1, दिस इज E2, KLM हो गया. तो हमने ये बताया कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये जो KL है, KL यहाँ पे देखिए, जो KL है वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. और हमने ये माना कि जब KL जो है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और जो KM है वो प्राइस इफेक्ट है. KM क्या है? प्राइस इफेक्ट है.
और हमने ये माना के एम क्या है, प्राइस इफेक्ट है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एल एम है, एल एम देख रहे हैं आप, ये एल और ये एम, ये क्या है, इनकम इफेक्ट है। ये क्या है, इनकम इफेक्ट है। एल एम क्या है, इनकम इफेक्ट है। तो आपने देखा जो के एल है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जो के एम है प्राइस इफेक्ट है, और जो एल एम है वो क्या, इनकम इफेक्ट है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, जो E1 से E2 हुआ ये पूरा प्राइस इफेक्ट है। ये पूरा देखिए यहाँ पे देख रहे हैं के एम, ये जो के एम है ये क्या, प्राइस इफेक्ट है। प्राइस इफेक्ट मैंने बताया था, प्राइस के कम होने से, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस देन परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज एंड ही कैन बाई मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। तो ये नॉर्मल गुड्स है, जब प्राइस कम हो गया तो ये पूरा E1 से E2 का जो मूवमेंट दिखा रहा है और K से M दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्राइस इफेक्ट। ये क्या दिखा रहा है, ये प्राइस इफेक्ट दिखा रहा है। और मैंने अभी आपको बता दिया जो KL है, KL दिखा रहा है सब्स्टिट्यूशन है, बिकॉज कंज्यूमर विल लाइक चीपर गुड एज कम्पेयर टू सुपीरियर गुड्स। क्यों, यहाँ पे तो प्राइस भी ज़्यादा है, तो कंज्यूमर यहाँ पे इस लाइन में यहाँ पे ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहा है। क्यों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, बिकॉज द प्राइस विल लेस और ही कैन बाई मोर चीपर गुड एज कम्पेयर टू एक्सपेंसिव गुड्स। यहाँ पे क्या, ये एक्सपेंसिव हो रहा है, ये महंगा हो रहा है और प्राइस भी ज़्यादा है। और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन हो गया है। सब्स्टिट्यूशन इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, प्राइस भी क्या हो गया, कम हो गया। इस वाले में है तो इंटरफेरेंस कर्व ये देखिए आप IC1, बट यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस भी कम हो गया है और ही कैन बाई चीपर गुड एज कम्पेयर टू एक्सपेंसिव गुड्स। अब आइए इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हो गया LM। तो इनकम इफेक्ट मैंने आपको समझाया था। इनकम इफेक्ट किसे कहते हैं, मैंने कहा था प्राइस के कम होने से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और ही कैन बाई मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो ये केस मैंने नॉर्मल गुड्स के लिए बारे में बताया। तो आपने एक बार दोबारा देखिए, मैं एक बार दोबारा समझा हिग्स इफेक्ट ने क्या बोला है। हिग्स इफेक्ट ने इसमें दो बातें बोली हैं कि ये जो है, ये AB जो है क्या कहते हैं, एक बजट लाइन है और दिस इज द इंडिफरेंस कर्व IC1 वेयर E1 इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्या हुआ कि प्राइस कम हो गया नॉर्मल गुड्स का। जब प्राइस कम हो गया तो इट विल बी शिफ्ट टू AB टू AC। ये कहाँ शिफ्ट हो गया, AB टू AC हो गया। इट विल शिफ्ट टू AB टू AC और द कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट A2 हियर ही कैन बाई मोर क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे भी ये मिला दिया और यहाँ पे मिला दिया। और अगर हम इसकी इनकम वापस ले लें और दोबारा देखें कि ये कहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमने एक पैरेलल लाइन यहाँ से खींची। हमने जो है एक पैरेलल लाइन यहाँ से खींची E2 के बराबर, और जब हमने पैरेलल लाइन खींची तो ये यहाँ पे मिल रहा है इस पॉइंट में, और इसको यहाँ से मिला दिया। तो प्राइस इफेक्ट क्या हुआ, प्राइस इफेक्ट अगर हम बात करेंगे तो प्राइस इफेक्ट जो है वो है E1 से E2 मूवमेंट, मीन्स KM ये हो गया प्राइस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें क्या हो गया, KL हो गया। और अगर हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट इसमें कितना, LM हो गया। तो इस तरीके से हिग्स इफेक्ट ने नॉर्मल गुड्स के लिए प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया। और हिग्स ने, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे हिग्स ने नॉर्मल गुड्स के बारे में बताऊंगा, इन्फीरियर गुड्स के बारे में बताऊंगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में भी बताऊंगा। नॉर्मल गुड्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और ये गिवन गुड्स के बारे में बताऊंगा और इन्फीरियर गुड्स के बारे में बताऊंगा, और उन तीनों में चेंज बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा। तो आज स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत ही बढ़िया टॉपिक हिग्स मेथड करवाया, और हिग्स मेथड्स में मैंने बताया कि किस तरीके से आपने प्राइस इफेक्ट निकाला, किस तरीके से आपने इनकम इफेक्ट निकाला, और प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपने कराया। ये बहुत हाई लेवल में वीडियोज है और ये IAS PCS में आता ही आता है, और मैंने कई बार देखा कंपटीशन नेट में ही पूछा जाता है कि किस तरीके से ये होता है। और जो बच्चे MA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, MA इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता ही आता है, व्हाट इज़ हिग्स इफेक्ट। इसके बाद मैं जल्दी अपना वीडियो स्लट्सकी इफेक्ट के बारे में बताऊँगा, व्हाट इज़ स्लट्सकी इफेक्ट, और फिर कैसे हिग्स और स्लट्सकी में क्या क्या अंतर है वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। और ये बताऊंगा कि किस तरीके से हिग्स इफेक्ट में, जो हिग्स इफेक्ट में ये तीनों चीज़ें कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। थैंक्स डॉक्टर विभा।